હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયનો પાઠ 3 જરા મુસ્કુરાઈએ, જે બીજા સત્રમાં આવે છે। પાઠ 3ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે। તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા જરૂરી છે। ચાલો શીખીએ ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 3 જરા મુસ્કુરાઈએ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, सामयिको अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने हो या पढ़े हो उन्हें लिखिए। એટલે કે તમારી આજુબાજુ આવતા સામયિક, છાપાઓ કે પુસ્તકોમાંથી તમે ક્યાંય ચુટકુલા એટલે કે જોક્સ સાંભળ્યા હોય, વાંચ્યા હોય તો અહીંયા લખવાના છે અને તમારા વર્ગખંડમાં રજૂ કરવાના છે। હું અહીંયા કેટલાક ચુટકુલા લખું છું, તમારે તમે સાંભળેલા કે વાંચેલા ચુટકુલા લખવાના છે। अमित कहे छे पहलवान से, कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 वर्ष बताई थी और आज भी अपनी उम्र 32 वर्ष बताते हो। त्यारे पहलवान कहे थे, हम पहलवान है जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। बीजो एक जोक्स है। टीचर कहे थे, जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ कौन सी चीज ज्यादा पैदा होती है? त्यारे छात्र कहे थे, जी कीचड़। ત્યારબાદ પિતા કહે છે, લંકા કો સોને કી લંકા ક્यों कहते हैं? ત્યારે એનો છોકરો જવાબ કહે છે, इसीलिए कि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे। આવી રીતે તમે સાંભળેલા, વાંચેલા ચુટકુલા અહીંયા લખવાના છે। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। અહીં એક ફકરો આપેલો છે, તે વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે અને તેમાંથી આપણે મુહાવરા એટલે કે રૂઢિપ્રયોગ શોધવાના છે, તેનો અર્થ આપવાનો છે અને તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। તો લખી શકાય, 1, આંખો કા તારા હોના, તેનો અર્થ થશે बहुत प्यारा होना। તેના આધારે વાક્ય બનાવી શકાય, ગૌરવ अपनी माँ की आंखों का तारा है। 2, कमर कसना, તેનો અર્થ થશે अच्छी तरह तैयार होना। તેના આધારે વાક્ય બનાવી શકાય, मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। 3, ईद का चांद होना, તેનો અર્થ થશે बहुत दिन बाद मिलना। તેના આધારે વાક્ય બનાવી શકાય, आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। હું અહીંયા જે વાક્ય બનાવું છું એ જ વાક્ય બનાવવા જરૂરી નથી, તમે તમને મનગમતા વાક્ય બનાવી શકો છો, પરંતુ તેની અંદર આપેલા રૂઢિપ્રયોગનો ઉપયોગ થયેલો હોવો જોઈએ। 4, आस्तीन का सांप, તેનો અર્થ થશે કપટી મિત્ર અથવા મિત્ર બનકર શત્રુ જૈસા વ્યવહાર करना। તેના આધારે વાક્ય બનાવી શકાય, मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। 5, नजर चुराना, તેનો અર્થ થશે किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। તેના આધારે વાક્ય બનાવી શકાય, अपराधी पुलिस की नजर चुरा कर भाग गया। આવી રીતે આપણે મુહાવરા શોધીશું અને તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું। ત્યારબાદ 6, આગ બબૂલા હોના, તેનો અર્થ થશે बहुत क्रोधित होना। તેના આધારે વાક્ય બનાવી શકાય, नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। આવી રીતે આપણે ફકરામાંથી રૂઢિપ્રયોગ શોધીશું, તેનો અર્થ લખીશું અને તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3, રેખાંકિત શબ્દો કે લિંગ બદલ કર વાક્ય ફિર સે લીખીએ। એટલે કે અહીં આપેલા શબ્દની નીચે લીટી છે, તે શબ્દની લિંગ બદલવાની છે અને વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે। 1, મેરે દાદાજી યાત્રા પર ગયે હે, અહીંયા દાદાજીની લિંગ બદલતા દાદીજી થશે અને વાક્ય બનાવી શકાય, मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। 2, एक आदमी ने मुझसे कहा, एक औरत ने मुझसे कहा। 3, लेखक कहानी लिख रहा है, લેખકની નીચે લીટી છે, તેની લિંગ બદલતા થશે, લેખિકા कहानी लिख रही है। 4, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, मालकिन શબ્દનો લિંગ બદલતા થશે, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। 5, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा,
लिंग बदलता वाक्य बनावी शकाय। बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। 6 जंगल में शेर दहाड़ रहा है। शेरनी जग्याए शेरनी मूकी वाक्य बनावी शकाय। जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। 7 सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठानी दुकान में बैठी है। 8 अध्यापक पढ़ रहे हैं। अध्यापिका पढ़ रही है। 9 पंडित रामायण सुनाने लगे। पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। 10 लड़का दुकान के पास खड़ा है। लड़की दुकान के पास खड़ी है। આવી રીતે લિંગ બદલી અને વાક્ય ફરીથી લખીશું। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्य में प्रयोग कीजिए। घर उदाहरण आपेलू है, तेना 4 वाक्य बनाव्या है। 1, मेरा घर सूरत में है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मेरे घर में 3 कमरे हैं। मैं अपना घर साफ रखता हूँ। आपेला उदाहरण मुजब शब्द ने आधारे 4 वाक्य बनाववाना है। हूँ अहींया जे वाक्य बनावुं ए ज वाक्य बनाववा जरूरी नथी। तमे तमने मनगमता 4 वाक्य बनावी शको छो। 1, बाग, तेना आधारे वाक्य बनावी शकाय। 1, बाग में फूल होते हैं। 2, बाग में लड़के खेलते हैं। 3, मैं रोज बाग में जाता हूँ। 4, यह बाग बहुत सुंदर है। આવી રીતે 4 वाक्य बनावता जईशुं। 2, नदी। 1, हम नदी में नहाते हैं। 2, लोग नदी में तैरते हैं। 3, नदी में नावें चलती है। 4, गंगा पवित्र नदी है। 3, दोस्त। 1, गौरव मेरा दोस्त है। 2, मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है। 3, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। 4, जीवन में दोस्त होना जरूरी है। 4, पसंद। 1, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। 2, दीदी की पसंद चमेली का फूल है। 3, माँ केवड़ा पसंद करती है। 4, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ત્યારબાદ 5, कहानी, तेना आधारे वाक्य बनावी शकाय। 1, मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था। 2, मुझे कहानी पढ़ने का शौक है। 3, गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई। 4, बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 5, कहावतों का अर्थ दिए गए हैं। कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। એટલે કે આ કહેવતોના અર્થ આપેલા છે, તેની તમારા વર્ગખંડમાં તમારે ચર્ચા કરવાની છે અને ઉદાહરણ આપવાનું છે। 1, अक्कल बड़ी या भैंस, તેનો અર્થ થશે શરીર બડા હોने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। તેનું ઉદાહરણ આપણે આ મુજબ આપી શકીએ। शिक्षक कहे छे, हमारी अक्ल मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है। हमारी खोपड़ी भैंस से बहुत छोटी होती है और अक्ल तो उससे और भी छोटी होती है, तो फिर अक्ल को भैंस से बड़ी क्यों कहा जाता है? त्यारे एक विद्यार्थी कहे छे, गुरुजी कद में बड़े होने से ही है कोई बड़ा नहीं हो जाता। रोग का एक कीटाणु छोटा होने पर भी हमें बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है। इसी तरह अक्ल सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है। यह सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अक्ल का जलसा है। यदि भैंस में अक्ल होती तो वह पशु क्यों कहलाती? मनुष्य के पास अक्ल है, इसीलिए वह भैंस को पालकर उसका दूध निकालता है। हाथी और शेर भी मनुष्य के वश में हो जाते हैं, इसीलिए मनुष्य की अक्ल को भैंस से बड़ा माना जाता है। शिक्षक कहे छे, हाँ इसलिए तो कहावत है, अक्ल बड़ी या भैंस। ત્યારબાદ सवाल नंबर 2, आसमान से गिरा खजूर में अटका, તેનો अर्थ થશે એક કે બાદ એક વિપત્તિ में फंसना। તેને લખી શકાય। શિક્ષક કહે છે, અહીંયા છે તમારે વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થીની ચર્ચા પણ તમે લખી શકો છો। વિદ્યાર્થી અને તેના મિત્રની ચર્ચા પણ લખી શકો છો। મેં અહીંયા શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીની ચર્ચા લખી છે। તમે તમારી રીતે ચર્ચા લખી અને જવાબ લખી શકો છો। शिक्षक कहे छे, गोपाल क्या इस कहावत का तुम्हें कभी अनुभव हुआ है? त्यारे गोपाल कहे छे, हाँ गुरुजी, एक बार मेरे दादाजी बीमार हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर पिताजी घर लौटे तो देखा कि बाथरूम में पैर फिसल जाने से दादी के हाथ और सिर में गहरी चोट आई है। तब उनके मुंह से मैंने यही कहावत सुनी थी, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ત્યારબાદ ત્રીજી કહેવત છે, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास।
તેનો અર્થ થશે અચ્છા કામ છોડકર મહત્વહીન કામ में लग जाना। હવે તેની ચર્ચા કરી શકાય। શિક્ષક કહે છે, ધવલ क्या तुम इस कहावत का कोई उदाहरण दे सकते हो? ત્યારે ધવલ કહે છે, क्यों नहीं गुरुजी, मेरे चाचा जी फिल्म में अभिनेता बनने के लिए लखनऊ से मुंबई आए थे। बहुत कोशिश की पर किसी फिल्म में मौका नहीं मिला। आखिर उन्हें एक दफ्तर में क्लार्क बनकर जीविका चलानी पड़ी। एक दिन मैंने उनके मुंह से यही कहावत सुनी थी, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। ત્યારબાદ ચોથી કહેવત છે, જો ગરજતે હૈ વો બરસતે નહીં। તેનો અર્થ થાય, જો ડીંગ મારતે હૈ વે કામ નહીં કર सकते। હવે તેની ચર્ચા લખીએ તો શિક્ષક કહે છે, સલીલ क्या तुम इस कहावत का उदाहरण दे सकते हो? ત્યારે सलील कहे छे, गुरुजी हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी की किल्लत है। पिछले नगरपालिका चुनाव में हर पार्टी के नेता ने लोगों से कहा कि यदि वे चुनकर आएंगे तो कुछ दिनों में ही लोगों को नियमित रूप से भरपूर पानी दिलाएंगे। चुनाव हुए 2 साल हो गए, जो उम्मीदवार जीता वह अभी तक कहीं नजर नहीं आया। अब इसे आप क्या कहेंगे? शिक्षक कहे, सच है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ત્યારબાદ પાંચમી કહેવત છે, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। तेनी चर्चा लखिए। शिक्षक कहे छे, सूरज क्या इस कहावत को तुम सच मानते हो? ત્યારે सूरज कहे छे, गुरुजी अभी मैं स्कूल आ रहा था तो एक युवक एक महिला के गले से सोने की जंजीर झटक कर भाग रहा था। महिला के चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब इसे हम क्या कहेंगे? मोहन कहे छे, जैसी करनी वैसी भरनी। आ रीते આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખીશું। અહીં આપણા ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના પાઠ 3 ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6, 7, 8 ના તમામ પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે પ્લેલિસ્ટમાંથી જઈને મેળવી શકો છો। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો।